Hello, everyone, and welcome to yet another episode of Current Legal Affairs. Now, today we'll be covering the legal affairs of the week from July 25th to July 31st. Now, this is all the batches that we have, and you can please call on this number. There are specific classes for all the subjects, and there's one-to-one session with the teachers. We have classes of both kinds, live and recorded. We also have the study material we send to you, and a number of mock tests, through which you can prepare for your CLAT. Now let's come to the first case of this week. So the first case is Akela Lalita versus Sri Konda Hanumantha Rao. This is a Supreme Court case in which what has happened is that Supreme Court has observed something which was already actually written in CPC, that only wherein the person has written the relief which he wants, that relief can be given by the court to that person. If a person has not asked for that relief, now the person being obviously the petitioner, he has not asked for the relief, then the court cannot grant him that relief which he hasn't asked for. The reason behind it is that respondent will never be able to answer on that. So if you are asking for relief A, B and C, the defendant will come to the court and say that this is the reason why A relief should not be given, this is the reason why B relief should not be given, and this is the reason why C relief should not be given. Now, if the court is actually giving a relief which is D, which is not there in the prayer at all, so the respondent will never have an opportunity actually to explain why D relief should not be granted. And opportunity, on the respondent will be lost. Therefore, there will be a miscarriage of justice, and also it will be against the natural justice. The court has said it is a settled law that relief not found on pleading shall not be granted if a court considers or grants a relief, or for which no prayer or pleading was made, depriving the respondent of an opportunity to oppose or resist such relief, it would lead to miscarriage of justice, right? Now comes the second case, a politically driven case, which is Smriti Irani versus Pawan Khera and others. This was taken up by the Delhi High Court. So there has been a restaurant case with respect to Smriti Irani's daughter. On that case, there has been, there have been statements by the Congress members on which Smriti Irani, the Union Minister, she has, claimed that they are false statements, and therefore she filed for defamation. Now it's to see that the defamation case filed is actually a civil defamation and not a criminal defamation. There are two kinds of defamation. Criminal defamation is given in IPC under 499, the punishment is under 500. But if we go under civil defamation, what is the difference? In criminal defamation, the relief that you're asking for is actually that the person who has said anything against you, which you claim to be defaming, you want that person to go to jail, right? In civil defamation, you actually want that the person who has said anything against you, defaming you, should actually not be sent to jail, but he should compensate you for the reputational loss that you have, occurred because of his statement. Okay? So what is being asked here is civil remedy. Now the Delhi High Court has passed an ad interim injunction, in which case, in the civil defamation case filed by Union Minister Smriti Irani, wherein she is claiming 2 crore as the compensation for the statements made against her and her daughter with respect to the Goa restaurant case. The court has been of the view that prima facie case has been met out and balance of convenience is in the favor of the Union Minister Smriti Irani and is against the defendant leaders, right? Now what has the court said? The judge has said, I deem it proper to pass ad interim injunction directing defendants to delete and remove the allegations made during the press conference from all social media platforms, YouTube, Facebook, Instagram and Twitter. Now that's obviously one thing that the court will grant, because the statements which are said to be false are to be taken away. If a person is claiming that it's a defamation,
then whether or not it is defamation can be decided later, but the interim relief that the person will ask for is that all the statements that are coming, जो भी हमारे बारे में लिखा है online, at least remove that, क्योंकि जब तक वो रहेगा online, people will keep reading it and they will keep believing it while the person is claiming कि वो सब झूठ है, it's not true, right? Up the question is that what is ad interim injunction? We have dealt with what is civil defamation. Defamation दो तरह का है, criminal and civil, and we have seen the difference. Now what we have to see is that ad interim injunction क्या है? And what are these two terms that the court has used? Prima facie case and balance of convenience. अब इसको ad interim injunction का जो ये term है, इसको हम लोग दो में divide करते हैं. First, इंजंक्शन. इंजंक्शन क्या होता है? किसी भी चीज़ को रोकना, ठीक है? किसी चीज़ को रोकने को कहते हैं इंजंक्शन. केस चल रहा है, ठीक है, वो चलेगा कि वो एक्चुअली में फॉल्स था कि नहीं थे वो स्टेटमेंट्स डिफेम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, क्या उससे रेपुटेशन लॉस हो रहा था यूनियन मिनिस्टर एंड उनकी डॉक्टर को. ये सब क्वेश्चंस दे विल टेक टाइम, राइट? कोर्ट सारे एविडेंसेस देखेगा, इट विल गो थ्रू द प्रोसीजर. बट बीच में जो रिलीफ होगी, स्मृति ईरानी विल से कि ओके यू डिसाइड, आप डिसाइड करिए कि वो डिफेमिंग था कि नहीं था, बट तब तक जो चीज़ें स्टेटमेंट्स लिखे हैं हमारे बारे में एटलीस्ट उनको तो हटवाइए, वरना हमारा जो लॉस है वो तो होता रहेगा, राइट? इस तरह के रिलीफ्स को जो बीच में मांगी जाती हैं किसी केस के, जहाँ पे हम कहते हैं कि किसी चीज़ को रोकना है, इट हैज़ टू बी स्टॉप्ड टेम्पररली और परमानेंटली, जिस भी तरह से, उसको हम लोग कहते हैं इंजंक्शन. सो इंजंक्शन इज व्हाट, वेयर यू आर प्लीइंग कि कोई चीज़ रोकी जाए, ठीक? एड इंटरम या इंटरम का मतलब होता है इन बिटवीन, ठीक है? तो केस के बीच में आप इंजंक्शन ले रहे हो, केस के एंड में भी आप इंजंक्शन ले सकते हैं. ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे इंजंक्शन ना लेके, इंटरम इंजंक्शन ना लेके, वो लोग सिर्फ इंजंक्शन लेते हैं कि जब केस ख़त्म हो जाएगा तो उसके साथ ये भी होगा कि जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो कभी वापस नहीं लिखी जाएंगी उनके बारे में. तो दैट इज परमानेंट इंजंक्शन. अभी इंटरम बीच में इनको इंजंक्शन मिला है, ठीक? नाउ वी रेड दीज टू टर्म्स, प्राइमा फेसाई केस एंड बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, विच द कोर्ट हैज़ यूज्ड. कभी भी जब इंजंक्शन मांगा जाएगा, इंटरम एड इंटरम किसी भी तरह का इंजंक्शन, तो हमेशा ये तीन चीज़ें प्रूव करनी होंगी जो इंजंक्शन मांग रहा है उसको, द पेटिशनर. प्राइमा फेसाई केस बनता है. सेकंड क्या, कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इज इन is towards the petitioner and against the respondent. And third, irreparable injury. Now what does it all mean? प्राइमा फेसाई केस का मतलब ये है, प्राइमा फेसाई का मतलब क्या होता है? ऑन द फेस ऑफ इट, जो देखने में समझ में आ रहा हो. तो सुप्रीम कोर्ट ने मार्टिन बर्न लिमिटेड वर्सेस RN बैनर्जी के केस में बोला था कि a prima facie case does not mean a case proved to the hilt, but a case which can be said to be established if the evidence which is led in support of the same were believed. यानी कि प्राइमा फेसाई केस हमको बताना है, हमें ये बताना है कि हमारी रेपुटेशन को कोई लॉस हो रहा है, डिफेम हम हो रहे हैं. दैट इज ऑल विच स्मृति ईरानी हैड टू टेल. ये नहीं बताना था कि डिफेम हुए हैं वो कॉम्पनसेशन दें, ये नहीं बताना था, ठीक है? सिर्फ प्राइमा फेसाई, ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहा है कि हाँ देयर हैव बीन स्टेटमेंट्स पास्ड अगेंस्ट द यूनियन मिनिस्टर, ठीक? While determining whether a prima facie case had been made out, the relevant consideration is, क्या consider करता है कोर्ट, कि whether on evidence led it was possible to arrive at the conclusion in question and not whether that was the only conclusion that could be arrived. हम ये नहीं देख रहे हैं कि जो सारे evidences हैं इससे ये साबित होता है कि नहीं कि डिफेम हुआ है. हम लोग बस ये देख रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स पास हुए हैं, क्या इससे पॉसिबल है डिफेमेशन? अगर पॉसिबल है तो वो प्राइमा फेसाई केस स्टैब्लिश हो गया. दूसरी क्या चीज़ स्टैब्लिश करनी होती है? बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस. नाउ लेट्स सी दिस. बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एक्सप्लेन किया था दिल्ली हाई कोर्ट ने इन अनवर इलाही वर्सेस विनोद मिश्रा. ये क्या कॉन्सेप्ट है? बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस मीन्स कंपैरेटिव मिसचिफ और इनकन्वीनियंस विच इज लाइकली टू इशू फ्रॉम विथहोल्डिंग द इंजंक्शन विल बी ग्रेटर देन दैट विच इज लाइकली टू अराइज फ्रॉम ग्रांटिंग इट. यानी कि कोर्ट देखेगा कि जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ सीसॉ, ये है एक सीसॉ,
ठीक है। कोर्ट ये देखेगा कि अगर हमने इंजंक्शन ग्रांट कर दिया, ठीक है, तो ये जो बैलेंस है, कन्वीनियंस का जो बैलेंस है, यानी कि जो इसको हम लोग ये भी कहते हैं बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस, दैट्स अनदर टर्म। तो हम ये देखेंगे कि अगर इंजंक्शन ग्रांट कर दिया तो जो पेटिशनर है उसको फ़ायदा ज़्यादा होगा, ही विल बी बेनिफिटेड मोर, या फिर जो रिस्पोंडेंट है उसको ज़्यादा ग्रेव रिस्पॉन्स आएगा उसके लिए, इट विल बी ग्रेव इनजस्टिस टू हिम। अगर इधर की तरफ टिल्ट करता है कि इंजंक्शन दे दिया तो बहुत ज़्यादा जो लॉस है वो ग्रेव हो जाएगा और जो बैलेंस है वो रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट चला जाएगा बहुत ज़्यादा, और जो बेनिफिट है वो कम होगा पेटिशनर को, ठीक है, तो फिर इंजंक्शन नहीं ग्रांट होगा। लेकिन अगर ये सीसॉ बेनिफिट की तरफ जाता है तो फिर इंजंक्शन ग्रांट हो जाएगा, ठीक है। बेनिफिट टू हूँ, बेनिफिट टू दी पेटिशनर। कुछ प्रॉब्लम तो होगी रिस्पोंडेंट को ऑब्वियसली, बट बैलेंस कहाँ जा रहा है, इस तरह से देखते हैं। Now, in applying this principle, the court has to weigh the amount of substantial mischief that is likely to be done to the applicant if the injunction is refused and compare it with that which is likely to be caused on the other side if the injunction is granted. तो देने में इंजंक्शन ज़्यादा फ़ायदा है या ना देने में फ़ायदा है, इस चीज़ को तौलेंगे और उस हिसाब से इंजंक्शन देंगे। Now, the third is irreparable injury. इंजरी इज नॉट द क्वेश्चन, इररिपेयरेबल होनी चाहिए। ऐसी इंजरी जो डैमेजेस जिससे दे के कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सो व्हाट इफ द कोर्ट वुड हैव सेड कि ठीक है, आपके अगेंस्ट जो ये डिफेमेशन का केस है ये पूरा देखते हैं, डिसाइड होने के बाद देखेंगे कि आपके अगेंस्ट जो चीज़ें लिखी गई हैं वो नेट से हटानी है कि नहीं हटानी है। तो क्या होगा, ये एक इररिपेयरेबल इंजरी होगी। वाई? क्योंकि शी इज़ अ यूनियन मिनिस्टर, it will be widely published in every newspaper, in every article, in all the social media platforms, ठीक है, वो चीज़ बार बार पढ़ी जाएगी and it will get connected to her name. Now it doesn't matter if she is given 2 crores or 5 crores or 10 crores for the same thing. The fact is कि वो चीज़ उनके नाम के साथ अटैच हो जाएगी and the injury caused to her will be irreparable, right? वो आप compensation से नहीं हटा सकते। अगर ये 3 चीज़ें प्रूव हो जाती हैं कभी भी किसी भी केस में तो ही इंजंक्शन ग्रांट होता है, वरना नहीं होता। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट केस, मिकाला सिव्या, आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस में क्या हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। इसमें जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है क्या, ये मनी लॉन्ड्रिंग जो प्रॉब्लम है इट्स एन इकोनॉमिक ऑफेंस, इट्स अ सोशो इकोनॉमिक ऑफेंस। तो इससे रिलेटेड जो एक्ट है वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्ट है, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एक्ट। जो आप लोग सीआरपीसी में पढ़ते हैं, जो प्रोटेक्शन है एक अक्यूज्ड को, वो यहाँ पे बहुत डाइल्यूट हो जाता है। इसीलिए इस एक्ट को चैलेंज किया गया इन द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि ये चीज़ें हैं, पावर ऑफ अरेस्ट जो ईडी पे है। ईडी इज़ व्हाट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, which is the official officers which carry all the rights, all the parts of arrest, all the attachment under Prevention of Money Laundering Act, ठीक है। तो इनको जो पावर ऑफ अरेस्ट है, जो पावर है अटैच करने का, प्रॉपर्टी सीज करने का, सर्च करने का, वो बहुत वाइड है। इट्स मच वाइडर देन व्हाट यू हैव स्टडीड इन योर सीआरपीसी, राइट। जो आम केसेस के लिए है उससे कई ज़्यादा है ये। तो इसीलिए ये चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि ये सारे जो प्रोविजंस हैं ये सही नहीं है, और जैसे सीआरपीसी में है आप वैसे ही करिए। व्हाई दिस सच आर्बिट्ररी प्रोविजंस? तो कोर्ट ने बोला द फर्स्ट थिंग इज दैट द कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ व्हाट, ऑफ रिवर्स प्रूफ ऑफ बर्डन। अब बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ होता है हर केस में क्या होता है कि इफ़ यू आर कमिंग एंड सेइंग कि XYZ has stolen your purse. Now you have to prove that the person has stolen your purse, ठीक है। जो ये क्लेम कर रहा है कि दूसरे ने कोई भी क्राइम किया है, वो प्रूफ करता है। जिस पे इल्ज़ाम लगता है, द अक्यूज्ड नहीं बताता है कि हमने नहीं किया। बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे नहीं होता है, अक्यूज्ड पे नहीं होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन पे होता है, राइट। यहाँ पे
पीएमएलए में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अक्यूज पे होता है। एक बार ईडी ने कह दिया कि इस इंसान के पास इतने पैसे निकले, नाउ दैट पर्सन हैज टू प्रूव कि नहीं हमारे पास ये पैसे नहीं थे। ईडी डज नॉट हैव टू प्रूव कि उसके पास पैसे थे। ठीक है, तो ये जो रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है ये क्वेश्चन हुआ था और कोर्ट ने बोला कि नहीं ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है। उसका रीजन क्या दिया? कोर्ट ने बोला कि रीजनेबल नेक्सस है इस रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ का विद द ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ द एक्ट। कोई भी चीज़ आर्बिट्ररी कब होती है? वो तब आर्बिट्ररी होती है, आर्टिकल 14 के अगेंस्ट होती है कोई भी आर्बिट्ररी चीज़, और आर्बिट्ररीनेस तब होती है जब वो रीजनेबल नहीं हो। ठीक है, रीजनेबलनेस को हम लोग कैसे देखते हैं? जो कोर्ट्स ने बताया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रिंसिपल ले डाउन किया है कि अगर कोई भी चीज़ जो एक्ट में दी हुई है, कोई भी प्रोविजन, उसका नेक्सस यानी कि उसका जो कनेक्शन है वो विद द पर्पस ऑफ द एक्ट है, तो फिर ये आर्बिट्ररी नहीं है। तो कोर्ट ने यही कहा कि ये जो रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है, ये जो मतलब जो पर्पस है एक्ट का, ऑब्जेक्टिव है पीएमएलए का, उससे रीजनेबल नेक्सस में है, इसलिए ये आर्बिट्ररी नहीं है। दूसरा, ट्विन कंडीशंस फॉर बेल, जो सेक्शन 45 में पीएमएलए के हैं, कोर्ट ने बोला कि ये बिल्कुल सही है। जो पार्लियामेंट है वो कॉम्पिटेंट है कि वो अपने हिसाब से बनाए। एंड ये जो ट्विन कंडीशंस हैं फॉर बेल, ये एक्चुअली में पहले चैलेंज हुई थी सुप्रीम कोर्ट में ही, निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, और इस केस में इसको बोला गया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन पार्लियामेंट ने इसके बाद क्या किया, ये केस हुआ, फिर पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करके ये जो ट्विन कंडीशंस है वो दोबारा ला दी। उसके बाद ये वाला केस हुआ है जहाँ पे बोला गया कि नहीं, ये जो ट्विन कंडीशंस हैं ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। ठीक है, नाउ थर्ड चीज़ क्या कही गई? द कोर्ट हेल्ड दैट द ईडी ऑफिशियल्स आर नॉट पुलिस ऑफिसर्स। उन्होंने बोला है कोर्ट ने कि ये जो ईडी के ऑफिशियल्स हैं ये पुलिस की डेफिनेशन में नहीं आते। नाउ एज यू मस्ट हैव रेड योर एविडेंस एक्ट, योर सीआरपीसी, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं एक पुलिस ऑफिसर पे, जैसे कि पुलिस ऑफिसर के सामने दिया हुआ कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बयान इज़ नॉट टू बी एडमिटेड बाय द कोर्ट। कोर्ट एडमिट नहीं कर सकता उसको। अगर आप पुलिस कस्टडी में हैं और आपने किसी और से कुछ बोला है तो वो स्टेटमेंट भी एडमिट नहीं हो सकता। नाउ वंस अ कोर्ट हैज सेड कि ईडी है ही नहीं पुलिस ऑफिसर्स, तो यानी कि ईडी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके सामने जो स्टेटमेंट देगा वो एडमिसिबल है इन द कोर्ट, दैट विल बी एन एविडेंस इन इटसेल्फ। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या बोला कि ईडी ऑफिशियल्स आर नॉट पुलिस ऑफिशियल्स, therefore the statements recorded by ED officials under section 50 of the PMLA Act is not hit by article 20 clause 3। 20 clause 3 क्या कहता है? 20 clause 3 हम लोग को सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट राइट देता है कि हमसे आप कोई ऐसी बात नहीं पूछ सकते हैं या बुलवा सकते हैं जो केस में हमारे अगेंस्ट आए। ये राइट हम एक्सरसाइज करते हैं अगेंस्ट द पुलिस ऑफिशियल्स। लेकिन अगर ईडी पुलिस ऑफिशियल्स है ही नहीं तो फिर दे कैन एक्चुअली incriminate you to give statements which are self-incriminatory in nature. ठीक है? Consequently, the punishment of fine or arrest for giving false information cannot be equated to compulsion to give statement. तो अगर आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, उसके लिए फाइन पड़ रहा है या उसके लिए पनिशमेंट है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो रहा है। Now fourth, section 50 procedure is in the nature of inquiry and not investigation. Basically कोर्ट ने ये कहा कि इसमें जो ईडी ऑफिशियल्स है वो इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का अगेन एक पूरा प्रोसीजर है जो सीआरपीसी में ले डाउन किया है। ईडी के ऑफिशियल्स को ये नहीं मानना है, तो जो उनकी ईडी की पावर्स हैं वो एक्चुअली काफ़ी अनब्राइडल्ड हैं और इसी चीज़ को अपहोल्ड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। नाउ ये हम लोग ने यहाँ जो ट्विन कंडीशंस पढ़ी ये हैं क्या? व्हाट आर दीज ट्विन कंडीशंस? ट्विन कंडीशंस ये हैं कि द कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड दैट देयर इज़ अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द पर्सन इज़ नॉट गिल्टी फॉर सच ऑफेंस। ये प्रूव करना है, रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए बिलीव करने के लिए कि वो इंसान ने और वो ऑफेंस नहीं किया है। सेकेंड, दैट ही इज़ नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस वाइल ऑन बेल। ये ट्विन कंडीशंस प्रूव करनी होंगी। तो बेसिकली कोर्ट ने कहा कि कुछ भी आर्बिट्ररी नहीं है एंड इट अपहेल्ड एवरी प्रोविजन। नाउ कम्स द लास्ट केस फॉर द वीक इन री सेफ गार्डिंग कोर्ट्स एंड प्रोटेक्टिंग जजेस। अब इसमें क्या हुआ था? आई थिंक यू पीपल मस्ट बी एबल टू रिकॉल कि देयर वाज दिस जज उत्तम आनंद
जो कि धानबाद में posted थे, and he was the additional district and session judge of Dhanbad. And while he was taking his morning jog, he was knocked down by a vehicle, और ये चीज़ CCTV पे आई थी. तो ये जो केस था, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद से सुओ मोटो मतलब कि खुद से कोर्ट ने वो केस लिया कि वी विल ट्राई दिस केस, और हम लोग देखेंगे कि ये क्या हुआ. उसी के लिए जो कोर्ट है उसने SIT बैठाई नाउ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, कि वो इन्वेस्टिगेट करे इस केस के बारे में. इन्वेस्टिगेशन हो गया है. द कोर्ट हैज़ फाउंड जो 2 अक्यूज थे शुरू से ही, जो CCTV से रिकग्नाइज कर लिए गए थे, उनको बोला गया है कि येस दे आर गिल्टी ऑफ द मर्डर. एंड इसमें क्वांटम ऑफ सेंटेंस जो है कि उनको कितनी सज़ा मिलेगी, ये कभी भी सेम हियरिंग में नहीं डिसाइड हो सकता. सो दिस इज़ अ रूल दैट द जज कैन नॉट एक्चुअली डू दिस, कि आप कह दो कि आपको सज़ा मिलती है, यू आर गिल्टी ऑफ मर्डर एंड यू आर गिवन लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या 10 years का पनिशमेंट या कोई भी पनिशमेंट. ऐसे नहीं कर सकते. पहले उसमें सिर्फ ये बताना होगा कि येस यू आर फाउंड गिल्टी. उसके बाद टाइम दिया जाएगा, और टाइम देने के बाद फिर से डेट दी जाएगी कोर्ट की, जहाँ पे ये डिसाइड होगा कि कितनी पनिशमेंट मिलनी है. क्यों? क्योंकि क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे भी जो एडवोकेट्स होते हैं वो आर्ग्यू करते हैं. सो द कोर्ट हैज ऑलरेडी सेड कि गिल्टी हैं. तो अब इस पे बहस नहीं होगी कि वो गिल्टी हैं कि नहीं. बहस इस पे होगी कि उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलना चाहिए या डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए, या जैसा भी केस हो कि 10 years मिलनी चाहिए है, किस तरह से पनिशमेंट होनी चाहिए. सो ऑब्वियसली जो उनकी तरफ से एडवोकेट होंगे वो कम से कम सज़ा दिलवाएंगे, जो उनके अगेंस्ट होंगे या जो दूसरी साइड होंगे रादर, वो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाएंगे. राइट. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीक. I hope it was a quick recap for you all and you all got it. That's all. Thank you for keeping it till the end. Bye and have a great day. Bye bye.